भारत के पड़ोस में जो कंट्री है अफगानिस्तान, यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि मुझे अमेरिकन वेपन्स वापस चाहिए। 4 साल बाद भी डोनाल्ड ट्रंप इस बात को नहीं भूले और ट्रंप ने हाल ही में यह स्टेटमेंट दी है कि जो भी यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट पीछे रह गया था अफगानिस्तान में, इसको वापस लेने का टाइम आ चुका है। I think they should give our equipment back, and I told Pete to study that. But we left billions, tens of billions of dollars worth of equipment behind. Brand new trucks. You see them display it every year on their little roadway someplace where they have a road. Bagram. We were going to keep a small force on Bagram. We're going to have Bagram Air Base, one of the biggest air bases in the world, one of the biggest runways, one of the most. देखो, ट्रंप को आज भी नंबर्स याद है। उन्होंने बोला है 7 लाख से ऊपर राइफल्स, 70,000 आर्मर्ड प्लेटेड ट्रक्स, व्हीकल्स, 777,000 rifles, 70,000 armor plated. Many of them were armor plated trucks and vehicles. 70,000. डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत में आया है, उसे ना तो इंडिया से फुर्सत मिलती है और ना ही यूरोपीय यूनियन से, जो कि उसके पुराने दोस्त हैं। कभी उन पर क्या पाबंदियां लगाता है, कभी क्या पाबंदियां लगाता है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इनसे निकलकर एक और मुल्क के पीछे पड़ चुका है। यानी उन नमक हरामों पर उसकी नजर पड़ चुकी है जो कि पाकिस्तान में अपनी जिंदगी गुजार कर अब उसी को ही आंखें दिखाते हैं, यानी कि अफगानिस्तान। और ट्रंप ने कल अपनी बाकायदा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब से वो प्रेसिडेंट बना है, वो कई खिताबात तो करता रहा, मीटिंग्स भी करता रहा, लेकिन कल एक ऑफिशियल व्हाइट हाउस में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके साथ उसके प्राइम मिनिस्टर और दीगर कैबिनेट के मेंबर्स भी थे। उसने जिस चीज पर फोकस किया वो था अफगानिस्तान, और बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान को ये पैगाम दिया है कि हमारे जितने भी वेपन्स हैं वो हमें वापस कर दो। और ट्रंप के पास बाकायदा नंबर्स भी थे। उसने गिन गिन कर कहा कि इतने लाख गन्स वगैरह थी, 70,000 के करीब हमारे ट्रक्स और हमारी बख्तरबंद गाड़ियां वगैरह थी, ये सारी की सारी हमें वापस करो। और उनकी फिगर्स भी कोट करने के साथ साथ कीमत भी बताई। और साथ ही साथ जो सबसे अहम बात वो थी बगराम एयरबेस की, कि बगराम एयरबेस भी हम अफगानिस्तान से वापस लेंगे चाइना को काउंटर करने के लिए। अब बारी आती है नमक हरामों की। उन्होंने जवाब तो दिया है, लेकिन उसके साथ ही एकदम करेंसी डाउन हुई है अफगानिस्तान की, और साथ ही साथ जो अमेरिका ने अपनी इमदाद जारी रखी हुई थी उस पर भी ट्रंप ने रोक लगा दी है। सबसे पहले आप ट्रंप की ये कल की एक छोटा सा क्लिप सुने जिसमें वो सारे मामले पर बात कर रहा है। What has bothered me very much, very much. We give billions of dollars to Afghanistan. Nobody knows that. Nobody knew that. You know we give billions of dollars to Afghanistan, and yet we left behind all of that equipment, which wouldn't have happened. You know, we were getting out under me. I'm the one that got it down to 5,000 people. We were going to get out, but we were going to keep Bagram, not because of Afghanistan, but because of China, because it's exactly 1 hour away from where China makes its nuclear missiles. So they were going to keep Bagram. We were going to keep a small force on Bagram. We're going to have Bagram Air Base, one of the biggest air bases in the world, one of the biggest runways, one of the most powerful runways in the sense that it was very heavy concrete and steel. You could carry about anything. You could land anything on those runways. We gave it up. And you know who's occupying it right now? China. Biden gave it up. So we're going to keep that, and we're going to have a withdrawal, and we're going to take our equipment. We're going to do it properly. We're going to do it we're going to keep the equipment. Well, they ran out. It was, what happened there was, in fact, you know, in all fairness to Putin, when he saw that, he said, well, this is our time to go into Ukraine, I guess, because it was the timing seemed to be about right. But we sent them billions of dollars in aid, which nobody knows. If the American public knew that, they know it now. And if we're doing that, I think they should give our equipment back. And I told Pete to study that. But we left billions, tens of billions of dollars worth of equipment behind. Brand new trucks. You see them display it every year on their little roadway someplace where they have a road, and they drive the, you know, waving the flag and talking about America. Beautiful equipment that's all. वीडियो क्लिप आपने मुलाहिजा कि आगे चलकर आपको तकलीफ सुनाएंगे कि हमारे पड़ोसियों को इस पर काफी तकलीफ हो रही है, यानी अफगानियों की जो ट्रंप बजा रहा है उस पर तकलीफ हो रही है भारतीयों को। और क्यों हो रही है वो आपको वो वीडियो देखकर ही पता लग जाएगा, क्योंकि आजकल बड़े प्यार की पींगें बढ़ रही हैं अफगानियों में और हिंदुस्तानियों में, क्योंकि उनके सियासी दफातर खुल रहे हैं, उनकी एम्बेसीज और कौंसल खाने खुल रहे हैं। लेकिन अब जब ट्रंप ने पेच कसना शुरू किया है तो जरूर उन अफगानियों को अब पाकिस्तान की याद सताएगी, जो हमेशा जब भी कोई मुश्किल आती थी तो फौरी तौर पर पाकिस्तान में घुसे थे। जरा सुनिएगा और मुलाहिजा कीजिएगा किस जुटाई के साथ अब भारतीय चीखें मार रहे हैं अफगानियों पर अमेरिका की तरफ से लगाई जाने वाली या फ्यूचर में लगाई जाने वाली सैंक्शंस पर।
भारत के पड़ोस में जो कंट्री है अफगानिस्तान, यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि मुझे अमेरिकन वेपन्स वापस चाहिए। 4 साल बाद भी डोनाल्ड ट्रंप इस बात को नहीं भूले कि यूएसए अपने बहुत सारे हथियार अफगानिस्तान में छोड़ के चला गया था। और ट्रंप ने हाल ही में यह स्टेटमेंट दी है कि जो भी यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट पीछे रह गया था अफगानिस्तान में, इसको वापस लेने का टाइम आ चुका है। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं 4 साल हो गए और कितना मिलिट्री इक्विपमेंट था। देखो, ट्रंप को आज भी नंबर्स याद है। उन्होंने बोला है 7 लाख से ऊपर राइफल्स, 70,000 आर्मर्ड प्लेटेड ट्रक्स, व्हीकल्स, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स, खूब सारे मिसाइल्स, इतना कुछ हम अफगानिस्तान में छोड़कर आ गए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिलिट्री इक्विपमेंट, मुझे ये सब वापस चाहिए। ये जो छोटी सी क्लिप है ट्रंप की, ये देखिए। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये पॉसिबल है या नहीं, और यूएसए ने मेन जो गलती है ये कहां करी थी। Afghanistan is one of the biggest sellers of military equipment in the world. You know why? They're selling the equipment that we left. We're first, they were second or third. Can you believe it? They're selling 777,000 rifles, 70,000 armor-plated, many of them were armor-plated trucks and vehicles. 70,000. अब ये छोटी सी क्लिप देखकर आप ये कहोगे अच्छा समझ में आ गया, यूएसए के बहुत सारे हथियार अफगानिस्तान में रह गए थे, ट्रंप इनको वापस लेना चाहते हैं। मगर ये हथियार अफगानिस्तान में रह कैसे गए? थोड़ा सा रिकैप आपको दे देता हूं। देखिए, सितंबर 11, 2001 को यूएसए पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होता है। करीब 3,000 लोग यूएस के मारे जाते हैं और इस हमले का जिम्मेदार ठहराया जाता है ओसामा बिन लादेन को। ना ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए यूएसए ने बहुत प्रयत्न किए। अंत में इनकी इंटेलिजेंस इनपुट्स ने इनको यह बताया कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में कहीं पर छुपा हुआ है। यूएस गवर्नमेंट ने उस वक्त अफगान तालिबान को बोला कि ओसामा बिन लादेन को दे दो हमको। अफगान तालिबान ने मना कर दिया। तो फिर उस टाइम अक्टूबर 7, 2001 को देन यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यह अनाउंस किया कि यूएस नेटो कंट्रीज के साथ मिलकर अफगानिस्तान पे आक्रमण करेगा। यूएस समेत कई नेटो कंट्रीज ने अटैक किया अफगानिस्तान को और यह अटैक सफल रहा। बहुत ही आसानी से यूएस और बाकी कंट्रीज ने अफगानिस्तान को कब्जा लिया। अब क्वेश्चन यह था, ओसामा बिन लादेन कहां पर है? 2001 से लेकर 2011 तक का टाइम बीत गया। यूएस ओसामा बिन लादेन को ढूंढता रहा। इस बीच कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएसए के खर्च हो गए, कई सोल्जर्स मारे गए, तालिबान से कई लड़ाइयां हुई, मगर बिन लादेन नहीं मारा गया। अंत में 10 साल बाद पता लगा बिन लादेन तो चुपचाप पाकिस्तान में छुप के बैठा हुआ था और यूएस फोर्सेस चुपचाप गई पाकिस्तान में और बिन लादेन को पाकिस्तान में मार दिया। अजीब बात देखिए, 10 साल में अफगानिस्तान को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया बिन लादेन को ढूंढने के लिए, जबकि वो छुपा पाकिस्तान में था। और पाकिस्तान में बिन लादेन मिला उसके बाद भी यूएसए ने रेगुलरली पाकिस्तान को मिलिट्री एड प्रोवाइड करी है। खैर, ये अपने आप में बहुत बड़ा डिजास्टर था। बिन लादेन मार दिया, उसके बाद भी 10 साल तक यूएसए ने अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस बनाकर रखी। यूएस का यह कहना था कि ये अफगानिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। उसके लिए बड़े प्रयास किए, इलेक्शन करवाने की कोशिश करी, मगर अंत में थक हार के यूएसए ने हाथ जोड़ लिया और बोल दिया कि कुछ नहीं हो सकता है इस कंट्री का। और डोनाल्ड ट्रंप ने 2018-20 के आसपास ये बात कन्वे कर दी थी कि यूएस अफगानिस्तान से निकल जाएगा, अफगानिस्तान में बहुत खर्चा हो गया। और जब मैं कहता हूं ना बहुत, मैं नंबर बताता हूं आपको। 20 साल जो यूएस रहा ना अफगानिस्तान में, यूएसए का टोटल खर्चा आया है 2.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। जी हाँ, बिलियन नहीं, ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। नाउ ट्रंप का प्लान तो ये था कि ये अफगानिस्तान से यूएस को निकालेंगे, मगर फिर आपको पता है ट्रंप इलेक्शन हार गए और बाइडन पावर में आ गए। नाउ बाइडन ने भी यही कहा कि ठीक है, मैं जो ट्रंप की नीति थी उसको फॉलो करूंगा, यूएसए को अफगानिस्तान से बाहर निकालेंगे। मगर जो बाहर निकालने का प्रोसेस था ना अंडर जो बाइडन, ये बहुत अजीबोगरीब था, बहुत ज्यादा आप कह लीजिए मिसमैनेज था। और यूएसए ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अपने वेपन, जो इनके हजारों सोल्जर्स डिप्लॉयड थे अफगानिस्तान में, जो हथियार वो यूज करते थे, वो हथियार भी अफगानिस्तान में छोड़ दिए। और उस वक्त मैं आपको बता दूं, भारत में काफी चिंता हो गई थी कि ये सारे हथियार जो है गलत हाथ में चले गए तो क्या होगा, कि जो वेपन्स है तालिबान के वो भी मुझको वापस चाहिए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा, अच्छा ट्रंप ये बोल तो रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है, तालिबान मान जाएगा? तालिबान ने जब ये न्यूज के बारे में इनिशियली सुना, तालिबान ने ओपनली ट्रंप को धमकी दी है कि जो ये सारे हथियार है ना जो छोड़कर गए थे, तुम पर ही इस्तेमाल कर देंगे अगर तुमने ये हथियार वापस लेने की कोशिश करी। तालिबान का ये कहना है। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।